Hi everyone, this is Kumar Sanju sir, and once again I warmly welcome you all in today's session. Here in this session, we are going to discuss one of the most important topic, that is structuralism, right? And whatever the key terms are there related with this particular movements, we are going to discuss in detail. But before starting today's topic in detail, we have a need to understand that what is the meaning of structuralism. What is the structuralism is talking about? So let's move ahead. As we know that structuralism is a word which comes from structure, right? As we know that without structure there is nothing possible to weld up. So to make anything we need a particular structure, and on that particular structure we can go ahead. In the same way, structuralism is talking about structure. So here first we are going to discuss structura. Just wait, let me change the color first. Yeah, structuralism, right? So structuralism comes out from structure. First we have a need to understand that what is structure, right? We will discuss in detail that what is structure and what kind of structure the structuralism is talking about. If we talk about the 1920s, that earlier the structuralism, the term was closely associated with social science like anthropology, psychology, philosophy and sociology, right? But till 1950s, if we talk about the 1950s, with the arrival of Ferdinand de Saussure, this particular term became closely associated with text or literature, right? Earlier it was talking about the social science, that how the people think, how they do, what kind of their behavior, all things were right included in structuralism. But after 1950s, it specifically focused only on literature, right? So we were talking about that what is the structure. The without a structure there is nothing possible in this world to make anything. For anything which we wants to weld, we have a need a particular structure. So here we are talking about what kind of structure we are talking about. There will be a particular structure of a language. अब बात समझिए हिंदी में. देखिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना स्ट्रक्चर के बन जाए, राइट? हर उस चीज को जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की जरूरत है. तो हम लोग यहाँ पर किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, सुनते हैं, उसके लिए भी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, बिना स्ट्रक्चर के ये लैंग्वेज अपने आप में कंप्लीट नहीं होती. तो जो लैंग्वेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, लैंग्वेज क्या है? बेसिकली एक लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट है. लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट. लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट का मतलब है इसमें एक अपना ग्रामेटिकल पैटर्न होगा. ठीक है, इसमें अलग अलग फिगर ऑफ स्पीचेस होंगी. ठीक है, इसमें अलग सिंबल्स होंगे, इमेजरी होगी, यानी कि इमेजेस होंगी, है ना? तो ये लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट हुआ. अब बात ये है कि जब आप इन सब चीजों को, जो एक पार्टिकुलर पैटर्न है, यानी कि देयर इज एन अंडरलाइंग पैटर्न, अंडरलाइंग पैटर्न मतलब जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में एक अंडरलाइंग पैटर्न होता है. यानी कि पैटर्न मतलब क्या है कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार की इमेजेस, सिंबल्स और इसका एक पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पैटर्न होता है. उसको हमें समझने की जरूरत है. ठीक है ना? उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम जो है किसी पार्टिकुलर वर्क या स्ट्रक्चर को समझ नहीं सकते हैं. तो यहाँ पर बात आती है वर्क की और इस टेक्स्ट की. ध्यान रखना, बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारे वर्क्स लिखे होंगे. तो हम ये बात कर रहे हैं कि पहले 1920 तक
लोग वर्क पे फोकस कर रहे थे कि ये वर्क किसने लिखा है, कब, हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है, किस पर्टिकुलर एरा में लिखा गया, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिखा गया। तो केवल हम एक वर्क की बात करते थे, और जो पर्टिकुलर एरा था, पर्टिकुलर जो राइटर्स थे, उनके बायोग्राफिकल चीज़ों को पढ़ करके हम समझ जाते थे कि बेसिकली इन्होंने क्या लिखा होगा, या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन कौन सी फीचर्स चल रही थी, क्या सिचुएशन थी, उसको हम जान जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि भैया जी इस वर्क के अंदर क्या होने वाला है। बात समझते रहना। जैसे हम विक्टोरियन एरा की बात करें, चार्ल्स डिकेंस की बात करें, तो हमको पता है चार्ल्स डिकेंस क्या है, तो हमको पता है चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एरा के हैं, तो उन्होंने जो है ऑर्फन्स पर, क्रिमिनल्स पर, ठीक है जी, एजुकेशन वहाँ का सिस्टम जो था उसके ऊपर, या फिर जो चाइल्ड लेबर था उसके ऊपर उन्होंने डिपिक्ट किया है, क्योंकि खुद की उनकी अपनी लाइफ जो रही बहुत स्ट्रगलपूर्ण रही है। तो हम राइटर के वर्क को देख करके, मतलब राइटर की बायोग्राफी को पढ़ करके वो चीज़ें हम समझ लेते थे। लेकिन ये जब से स्ट्रक्चरलिज्म आया है, इन्होंने कहा है कि बेसिकली हमें किसी भी जो राइटर हैं उनके हमें हिस्टोरिकल यानी कि डाइसंक्रोनिक यानी कि हिस्टोरिकल जो चीज़ें रही हैं उनके बारे में हमें नहीं जानना है, ना ही उनकी बायोग्राफी के बारे में जानना है, उनका कौन सा एरा है उसके बारे में हमें नहीं जानना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टेक्स्ट पे, वर्क पे नहीं। वर्क का क्या है कि अपना एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसका एक पर्टिकुलर वेट होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइज होगी, वेट एंड लेंथ होगी। लेकिन टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट बेसिकली आप समझ रहे हैं ना, टेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट। मतलब इसमें क्या क्या होगा भाई साहब, इसमें बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेज होंगी, ग्रामेटिकल का पैटर्न होगा, सिंबल्स होंगे, इमेजेस होंगी। तो ये टेक्स्ट जो होता है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है। वर्क किसी राइटर का हो सकता है लेकिन टेक्स्ट किसी का नहीं हो सकता, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब समझना, ये कहता है कि हमें आप जितनी बार पढ़ना चाहो, जिस तरीके से जो मीनिंग निकालना चाहो वो आप हमसे निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंस कर सकते हैं। जैसे हमने कोई वर्क पढ़ा और आपने कोई वर्क पढ़ा, हमारे हिसाब से उस टेक्स्ट का मीनिंग अलग है, दूसरे के हिसाब से अलग है। जिसने जैसा स्ट्रक्चर, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है द पर्टिकुलर उस टेक्स्ट का, जिसने जैसा समझा उसको वैसे उसने इनहेंस किया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका कोई एक पर्टिकुलर एक ही मीनिंग हुआ, ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट एकदम इंडिपेंडेंट रहता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है कि हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है टेक्स्ट में, वो हमें जानने की कोशिश करनी है। और जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किसका स्ट्रक्चर? लैंग्वेज का। और लैंग्वेज क्या है तो आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज जो है इज अ सिस्टम ऑफ साइन, इज अ सिस्टम ऑफ साइन, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या है? ये सिस्टम है किसका? साइंस का। मतलब लैंग्वेज में बहुत सारे साइंस होते हैं, ठीक है, उनसे ये मिलकर के बनी होती है। उन साइंस को हमें समझने की ज़रूरत होती है। जब तक हम उस साइंस को समझेंगे नहीं, हम अपना कम्युनिकेशन सही से नहीं कर सकते। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी। ये हमें बात समझनी चाहिए। दूसरी बात आप जानते हैं, देखिए लैंग्वेज ही एक मेन जरिया होता है जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ को कह पाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें और मैं रख रहा हूँ, उनको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे आपने वर्ड देखा सुना होगा, लैंग्वेज एंड पैरोल। पैरोल का मतलब होता है स्पीच, लैंग्वेज का मतलब होता है लैंग्वेज। मतलब जो भी हमारी थॉट इमोशंस जो भी होती हैं वो हम किसी लैंग्वेज के माध्यम से ही चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। जब तक हम लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम लैंग्वेज को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम कैसे बोल पाएंगे, एक पर्टिकुलर वे में नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमको लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है। जब लैंग्वेज को समझ जाएंगे तभी जो है हम चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचा सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो वही स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि भैया जी हमको स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है, कि देयर इज़ अ particular underlying structure of that particular text, and language is nothing but is a system of science. If we come to know about the different kinds of science, easily we can inference the meaning from that particular text, ठीक है जी। ये बात आपको समझनी है। और टेक्स्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, टेक्स्ट जो है किसी के भरोसे नहीं होता है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर क्या बताया था भाई, कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो आपका कहाँ कहाँ फोकस करता है। स्ट्रक्चरलिज्म कहाँ फोकस करता है? तो मेनली आप समझो, ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जो है ये फोकस करते हैं होल पर। होल का मतलब ये पार्ट पे भरोसा नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ को हमें समझना है तो हमको एज अ होल समझना पड़ेगा, पार्ट नहीं। इन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ को जो है हमको आइसोलेशन में हम किसी भी टेक्स्ट को सही समझ सकते हैं,
आइसोलेशन में। मतलब कि कोई भी टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो आप अकेले में नहीं निकाल सकते जब तक कि उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया जाएगा। ठीक है थी, तो ये आपको समझना है, आइसोलेशन में मीनिंग नहीं होगा। दूसरा बात क्या कहना है कि जो मीनिंग होता है बेसिकली वो आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब ये, जैसे एक वर्ड का मीनिंग अभी कुछ भी लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि इसका मीनिंग यही रहेगा, जैसे जिस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होगा उसका मीनिंग वैसे ही बदल जाएगा, तो वो चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, बाकी आर्बिट्रेरी बताया है, बाइनरी अपोजिशन बताया है। तो जैसे ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले बात कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का आज जो हम मीनिंग देख रहे हैं, ये कैसे ये मीनिंग आया, क्या इसका कारण रहा है, दुनिया में जो मीनिंग आप देख रहे हैं अलग अलग वर्ड की, ये कैसे यहाँ पर जो है इतनी सारी मीनिंग्स बन गई, इनके पर्टिकुलर मीन हो गए, मतलब ये कैसे हुआ। इन्होंने कहा जबकि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का कोई फिक्स मीनिंग होता ही नहीं है, उसका मीनिंग तो सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता रहेगा, जिस जिस जगह पर आप प्रयोग करेंगे उसके हिसाब से बदल जाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग जो है देखने वाले हैं यहाँ पर डिटेल में। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। देखो स्ट्रक्चरलिज्म है एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, ये आपको ध्यान देना है, और ये 1950 से शुरू होता है। ठीक है जी। पहले स्ट्रक्चरलिज्म ये सिंगल जो है यूनिफाइड अप्रोच था पहले, जिसमें हम जो है भैया जी ह्यूमन लाइफ के बारे में समझते थे कि आखिर इनका बिहेवियर क्या है, कैसे ये सोचते हैं, कैसे ये करते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, पहले जो स्ट्रक्चरलिज्म था मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली सोशल साइंस से एसोसिएटेड था। सबसे पहले क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इसका प्रयोग किया था, बाद में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, जैसे आपके जो भाई जैक्स लैकन, रोलैंड बर्थेस और जैक्स डेरिडा, तो इन लोगों ने जो है इसको लिटरेचर में प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और बाद में जब आपके फर्डिनेंड डी सचेवर आते हैं, वहीं से जो है ये लिंग्विस्टिक काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो जाता है, और एक अलग वे देखने को मिलता है टू लैंग्वेज स्टडी, मतलब लैंग्वेज को स्टडी करने का। अभी हम लोग सीधे मेन पॉइंट पे अपने चलेंगे। अब यहाँ पर देखना, देखो डायक्रोनिक मोड, पहले क्या था भाई, जो लोग हुआ करते थे मतलब 1950 से पहले तो डायक्रोनिक मोड यूज़ करते थे, बाद में क्या होता है फिर सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक का मतलब समझिएगा प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर कि भाई अभी जो है क्या माहौल चल रहा है, कि यहाँ पे लिखा ना कि भाई अब क्या करते थे, एक साइंटिफिक स्टडी करनी है लैंग्वेज की, कि आखिर ये जो लैंग्वेज है ये क्या है, ये किसकी कंपोजिशन से बनी है, लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व है, इसका पर्टिकुलर पैटर्न क्या, उस चीज़ को इसमें जाना गया। जब ये चीज़ आप जान जाएंगे तब जा करके आप आराम से किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखो द बेसिस फॉर स्ट्रक्चरलिज्म, बेसिक चीज़ें दो हैं, एक तो लिंग्विस्टिक रहा है कि लिंग्विस्टिक को समझना है कि भाई इसमें साइंस कौन क्या है क्या नहीं है, मतलब लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइन, देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अंडरलाइंग, तो क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, और कौन कौन से क्या क्या साइंस हैं, साइंस का मतलब मैंने आपको बताया था अभी कि जो भी इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, सिंबल्स हैं, इमेजरी, उसको आप समझेंगे तब समझ पाएंगे। बाकी मिथालॉजी एंड मिथालॉजिकल करेक्टर्स हम कह सकते हैं। देखो पहले क्या होता है भाई, जैसे हम लोग कोई वर्क पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने फॉल स्टॉप को पढ़ा, या फिर आपने जैसे फीस्ट को पढ़ा है, या फिर जैसे आप कोई साउथ मूवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद को आपने देखा और आपने एकदम पहचान लिया कि भाई ये बंदा जो है इसकी कॉमेडी मस्त रहती है, तो जैसे ही वो ब्रह्मानंद किसी दूसरी मूवी में आएंगे आप समझ जाएंगे कि इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी हंसी मजाक होने वाला है कि नहीं है। तो वैसे ही जो मिथोलॉजिकल करेक्टर पहले हमारी मिथोलॉजी में थे, अगर वो उठा लिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क में, तो हम समझ जाते हैं कि अब इस वाले वर्क में क्या मतलब जो है होगा, क्या इसका थीम रहेगा, क्या स्टोरी रहेगा। तो मिथोलॉजिकल करेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं किसी भी टेक्स्ट को जो है हमें समझने में। जैसे कि लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट को अगर हम समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप मीनिंग को निकाल पाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द स्ट्रक्चर्स इन क्वेश्चंस हियर आर दोज इम्पोज्ड बाय आवर वे परसीविंग द वर्ल्ड एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस रादर देन ऑब्जेक्टिव एंटिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये ध्यान देना, जैसे दुनिया में कोई चीज़ आप देख रहे हैं एक्सटर्नली जो चीज़ें हैं, ये ऐसी क्यों हैं, इनको ऐसे नहीं देखना, बल्कि उनको देख करके आपको क्या लग रहा है, ये चीज़ कैसे यहाँ पर आई हुई होगी, अपने अनुभव को जो है ऑर्गेनाइज वहाँ पर करना है। ठीक है ना, लिखा ना कि रादर देन ऑब्जेक्टिव एंटिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो चीज़ हैं वो तो हैं ही, लेकिन उनको देख करके आपके दिमाग में क्या चीज़ें बन रही हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाया गया
और वो तो ऑब्जेक्ट आपने देख लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कौन सा एक आकृति जो है वो आपके माइंड में ऑर्गेनाइज हो रही है, आपके अनुभव के आधार पर आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप समझिए मेरी बात को, हमारे इंडिया में तो मोबाइल नहीं बनते थे, लेकिन जैसे ही बाहर देखा अलग अलग कंट्रीज़ में, हमारे जो भी इंडियन साइंटिस्ट वगैरह जो रहे हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में उन्होंने पढ़ा, देशों के बारे में उनको अध्ययन किया, उनको देखा, तो उन्होंने जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद में उन्होंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज किया और एक नई चीज़ बना दी। अब उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया जो पहले चल रहा था, बल्कि उससे कोई दूसरी चीज़ बना दी। तो वही चीज़ ये भी बोलती है कि जब आप टेक्स्ट को आप देख रहे हैं, जो लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन उसके बाद जो नहीं है वो चीज़ आपको जानना ही स्ट्रक्चरलिज्म करता है, वही फोकस करता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो आपके आजकल क्रिटिक्स हो रहे हैं, जो अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इसी की मदद से कर रहे हैं। जिनको लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट समझ में आ जाता है, जिनको पार्टिकुलर पैटर्न स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है किसी टेक्स्ट का, वो उसी के आधार पर उसका मीनिंग अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग एक ही चीज़ की अलग अलग एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो दी जा रहे हैं, जबकि राइटर ने तो किस पर्सपेक्टिव से लिखा होगा उसको कोई हद तक जान नहीं पाया कि उसने क्या सोच करके लिखा होगा, लोग अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकाल ले रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर बात समझना, अभी देखो, स्ट्रक्चरलाइजेशन इज अटेम्प्ट टू सी एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सॉसियन लिंग्विस्टिक। अब ये जो उन्होंने बताया कि थिंग्स कैन बी सीन एज अ सिस्टम ऑफ साइंस, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो सब क्या है, सिस्टम ऑफ साइन है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा, जैसे देखो, जैसे थिंक कोई वस्तु है, टॉय हो गया, ट्री हो गया, रेसलिंग एक जो पोएम हो गई, तो ये क्या है, बेसिकली ये साइंस हो गए। इसको यहाँ से आप समझो, जैसे साइंस में इन्होंने दो चीज़ें दी हैं, एक तो सिग्निफायर हो गया और एक दूसरा सिग्निफाइड हो गया। तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या हुआ, मतलब देसी भाषा में समझो, जैसे हम लोग चौराहे पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर लाल बत्ती, नीली बत्ती और हरी बत्ती होती है। लाल बत्ती के बारे में आप जान ही रहे हैं, वो जैसे लाल बत्ती जलती है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये क्या है, बेसिकली ये हमसे कह रहा है कि ये रुक जाओ, जबकि कहीं पर लिखा नहीं होता कि कहीं रुक जाओ। लेकिन लाल बत्ती क्या हो गई, तो वो हो गई आपका जो है बेसिकली सिग्निफायर। और लाल बत्ती जैसे जली, आपने क्या समझा, दिमाग में आया, क्या बताया उस चीज़ ने, उसने बताया कि भैया जी स्टॉप। तो जो स्टॉप हो गया ये आपको क्या हो गया, सिग्निफाइड हो गया। अब आप समझो, अगर किसी भी बंदे ने अगर ये नहीं जानना कि भाई लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम ऑफ साइन है, और अगर आपने लैंग्वेज को नहीं समझ पाया कि ये साइन का सब जलवा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। जैसे अभी आप समझिए, बहुत सारे हमारे ग्रामीण इलाके से आने वाले जो लोग हैं, वो साइंस को समझ ही नहीं रहे हैं, तो बत्ती जल रही है, कौन सी जल रही, कौन सी हरी जल रही, लाल, उनको पता नहीं, वो सीधे जो है बढ़ाए चले जा रहे हैं, और बाद में क्या होता है, चालान कट जाता है। तो कारण क्या है कि भाई लाल बत्ती जो है सिग्निफायर है, उसने सिग्निफाइड किया, जल गई, तो उसने ये बताया कि भाई लाल मतलब खतरा, उसने क्या बताया, खतरा। खतरा का मतलब अगर आप इसके आग गए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो आपको क्या करना चाहिए, तो रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं रुके तो आपका क्या हो गया, चालान कट गया। बस जैसे हमने कहा टाइगर, टाइगर जैसे शब्द आता है, तो टाइगर एक शब्द जैसे सुना, आपके दिमाग में एक आकृति बनेगी कि यार इतना खतरनाक, मतलब डरावना, फियरनेस आपके अंदर आ जाएगी। तो टाइगर को देखते ही आप कहाँ पर चले गए, क्या आपके अंदर आ गया, डर। तो डर क्या हो गया, वो सिग्निफाइड हो गया। तो वही बता रहे हैं कि देखो, द साइन इज अ कॉन्स्टिट्यूट बाय द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। जो साइन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। क्या चीज़ देखी और क्या उसका मतलब निकला। जैसे आप समझिए, जैसे हम लोग मूवी वो पोएम वगैरह में पढ़ते हैं, वहाँ आप जानते हैं, जैसे कि फायर एंड आइस हम लोगों ने पढ़ा, फायर पढ़ा, फायर एंड आइस, तो वहाँ पर वर्ड फायर लिखा हुआ है। अब ये फायर का मतलब तो आग हुआ ना, लेकिन ये फायर का मतलब क्या होता है, एकदम धधकती हुई ज्वाला। तो इससे हमने लगा दिया कि फायर जो है वो डिजायर भी हो सकती है, क्योंकि डिजायर भी इच्छाएं जो होती हैं बहुत ज्वलनशील होती हैं, जो इसके जो है भाई डिजायर की तरफ मूव कर जाता है, फिर वो उसको दिक्कतों का सामना ही करना पड़ता है। तो इच्छाएं भी व्यक्ति को सीमित रखनी चाहिए, वरना ये भी आपको जला के राखे कर देंगी। जैसे मैकबेथ में क्या हुआ था, वो भी ओवर एम्बिशियस ही हो गया था ना, इच्छाएं उसकी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसने क्या किया था, अपने चाचा को ही मार दिया। मारा था कि नहीं मारा था। तो ये फायर का जो है बेसिकली एसोसिएशन कर दिया गया डिजायर से। अब अब जो फायर है, अगर फायर आप समझ गए कि फायर को केवल फायर मतलब समझेंगे, तो आप उस टेक्स्ट का मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। और फायर का मतलब अगर आप समझ गए डिजायर है, तो फिर आप टेक्स्ट का मीनिंग इन्फेरेंस कर लेंगे। इसीलिए
सिग्निफाइड और सिग्निफायर को समझना जरूरी है, और ये सब चीज़ कहाँ होती है, टेक्स्ट के अंदर ही होती है, इस पर ही ध्यान देना होता है हमको। वही स्ट्रक्चरलिज्म कह रहा है कि भाई जो भी स्ट्रक्चर है उसको समझिए कि टेक्स्ट में क्या है। टेक्स्ट का मीनिंग के लिए आपको एक्सप्लेनेशन के पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इमेजेस को समझिए, और समझ गए तो फिर आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट का कोई एक मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट के जो मीन के ऊपर किसी का मोनोपोली है, वही उस टेक्स्ट का जो है मतलब बता दिए तो वही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। टेक्स्ट का मीनिंग इंडिपेंडेंट है, जैसे चाहे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, सिग्निफायर सिग्निफाइड बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि जो सेसोरियन लिंग्विस्टिक के 3 फंडामेंटल एजम्पशंस हैं, मतलब लिंग्विस्टिक जो कंस्ट्रक्ट है उसमें 3 मेन चीज़ें बात आती हैं। पहला आता है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब इन्होंने बताया कि जो टेक्स्ट होता है उसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। टेक्स्ट हैज नो पार्टिकुलर मीनिंग, इसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, पर्सन एंड सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होगी उसी के हिसाब से इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट can't be understood, can't be understand in isolation। मतलब किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग जो है वो आप अकेले नहीं निकाल सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले का मतलब समझ रहे हैं, इसको किसी ना किसी के साथ में आपको कंट्रास्ट या कंपेरिजन करना ही करना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। अभी आपको इसी में बताते हैं, फिर इसी आगे आएगा कि बाइनरी अपोजिशन वो बताएंगे। दूसरा होता है रिलेशन, तो बस बता ही दिया आपको। सिस्टमेटिक, अब यहाँ समझिए आर्बिट्रेरी का आता है, द मीनिंग और अ सिग्निफिकेंस इज नॉट अ काइंड ऑफ कोर और इसेंस इनसाइड थिंग, रादर मीनिंग इज ऑलवेज आउटसाइड। ऐसा नहीं है कि कोई मीनिंग उसमें जो आपने लिख दिया कि डॉग माने कुत्ता होता तो कुत्ता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसका मीनिंग डिसाइड होगा जब वो यूज किया जाएगा। मीनिंग इज ऑलवेज आउटसाइड, मीनिंग हमेशा आउटसाइड रहता है। मीनिंग इज ऑलवेज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ थिंग, मीनिंग किसी भी वर्ड को दी जाती है, होती उसकी नहीं है। क्योंकि अगर एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता तो फिर ये जो पोएम में हम अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं ये कैसे होता। तो किसी भी वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। मैंने बताया ना, फायर का मतलब आग होता है, लेकिन फायर का मतलब वहाँ डिजायर हो गया। कोल्ड का मतलब केवल बर्फ होता है, ठंडे से होता है, लेकिन कोल्ड का मतलब डेथ भी हो जाता है, कोल्ड का मतलब हेट भी हो जाता है। तो पोएम पढ़े होंगे आपने, देखा होगा कोल्ड का मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब डेथ भी हो जाता है, कोल्ड का मतलब हेट भी है, ठीक है। तो ये कैसे हो जा रहा है, नहीं होना चाहिए था। तो वही बताया कि भैया जी मीनिंग इज ऑलवेज एन एट्रीब्यूट ऑफ थिंग्स, मीनिंग आर एट्रीब्यूटेड टू द थिंग्स बाय द ह्यूमन माइंड, नॉट कंटेंट विद इन देम। मीनिंग हमने और आपने दी है, मीनिंग अपने आप नहीं बनी है, बात समझना। जैसे आज से हम बात करें बहुत पहले, तब जो अंग्रेजी बनी होगी तो क्या लगता है ये पहले से अंग्रेजी बनी बनाई गई होगी, नहीं ना, ये मीनिंग हम लोगों ने दिया होगा। अब अगर जिस समय मीनिंग बनाई गई थी कि मान लो अगर हम कैट को, पहले हमने आपको बताया मान लो घोड़ा बोलने लगते, तो आज कैट को क्या बोल रहे होते, हॉर्स ही बोल रहे होते, है कि नहीं। तो टेक्स्ट का अपना कोई खुद का मीनिंग नहीं था, लेकिन अब ये चूंकि पहले से चला आ रहा है, अब एक ट्रेडिशन बन गई, कन्वेंशन बन गया है, तो उसी चीज को हम हिस्टोरिकल चीजों को फॉलो ही करते हुए चले जा रहे हैं। तो आज बिल्ली आज भी बिल्ली है, अब अगर बिल्ली को कल किसी ने जो है डॉग बोल दिया होता तो डॉग ही आज होता, है कि नहीं। तो इसीलिए टेक्स्ट का कोई मीनिंग नहीं है, इसको हम लोगों ने खुद ह्यूमन माइंड ने उसको दिया है। सो द मीनिंग एट्रीब्यूटेड टू वर्ड्स आर इंटायरली आर्बिट्रेरी, इसीलिए जो मीनिंग वर्ड को दी गई है वो आर्बिट्रेरी है, उस मीनिंग को कभी भी बदला जा सकता है, उसका कोई अपना खुद का मीनिंग नहीं होता है। दैट मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट कैन चेंज एज पर द टाइम, पर्सन, सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट, राइट, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट वॉज गिवन बाई द ह्यूमन माइंड्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई द मीनिंग इज आर्बिट्रेरी एंड प्रेस्क्राइब्ड थ्रू यूसेज एंड कन्वेंशंस ओनली। तो मैंने बताया ना, आज किसी भी वर्ड का मीनिंग, अगर आज आप देख रहे हैं डॉग का डॉग, तो ये पहले से यूज करता हुआ चला आ रहा है, कन्वेंशन ऐसा बन गया, ठीक है। अब अगर अभी समझो, अभी अगले 50 साल तक अगर कैट को डॉग बोला जाने लगे और सभी बोलने लगे, तो कल से डॉग कैट हो जाएगा और कैट डॉग हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। हाँ, दूसरा क्या है कि द वर्ड हैज नो क्वालिटी दैट सजेस्ट द मीनिंग,
वर्ड के अपने अंदर कोई क्वालिटी नहीं जो आपको मीनिंग सजेस्ट कर सके, बस केवल साउंड के, हाँ साउंड को छोड़ करके उनमें तो है। तो देयरफॉर द लैंग्वेज कैन नॉट बी सेड टू स्टैंड फॉर और रिफ्लेक्ट और रियलिटी द वर्ड। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज खुद में रियलिटी नहीं बताती, वर्ड के बारे में नहीं बताती, ठीक है। लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसको, जो लिखा है, जो पढ़ते हैं, वो रियलिटी नहीं होता है। जब तक उसके भाव को समझेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, इशारा कर देते हैं, ये भी लैंग्वेज ही है, साइंस है। जैसे हमने ऐसे से कर दिया तो हम समझ जाते हैं, ऐसे से कर दिया तो हमको बोलेंगे बाय, तो बोला कि ठीक है। ऐसे कर दिया तो बोला जाओ। अगर मान लो ये नहीं समझ पाए तो आदमी अलग तरीके से समझ सकता है। जैसे हमने ऐसे कर दिया, कुछ बोलेंगे ठीक है, ऐसे कह रहा है कि, कुछ कह रहा है कि जाओ और कुछ कह रहा है कि आओ, तो ये क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज इसीलिए बोला कि भाई अपने आप में सत्य नहीं होती है कि नहीं। लैंग्वेज कि जब बात को समझ लेंगे तब होगा। तो लैंग्वेज कैन नॉट बी सेड टू स्टैंड फॉर द रिफ्लेक्ट और रियलिटी और द वर्ल्ड। लैंग्वेज केवल किसी भी संसार की रियलिटीज को बता नहीं सकता है, क्योंकि लैंग्वेज एक पर्टिकुलर सिस्टम है, और सिस्टम जो है उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मीनिंग, वो बदलती रहेगी। तो ये रियलिटी नहीं बता रहा है कि ये जो है आज जो है वो कल नहीं होगा, बदल सकता है। तो द सम ऑफ इन प्रॉपर स्ट्रक्चरलिस्टिक टर्मिनोलॉजी द रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर वर्ड एंड सिग्निफाइड मीनिंग इज प्योरली आर्बिट्रेरी। तो जो मीनिंग आज निकल रहा है वो कल नहीं निकल सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। बाकी यहाँ समझ रहे रिलेशन, ठीक है। हाँ, रिलेशनल, रिलेशनल क्या है इसको समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। तो बात समझिएगा कि किसी भी वर्ड की मीनिंग आप अकेले नहीं निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए आपको किसी न किसी के साथ में क्या करना पड़ेगा? कंट्रास्ट करना पड़ेगा या फिर कंपेयर करना पड़ेगा। कंट्रास्ट और कंपेयर करेंगे तभी जाकर के किसी वर्ड की मीनिंग आएगी, और इसी से निकल के आता है आपका बाइनरी अपोजिशन। बाइनरी अपोजिशन, बाइनरी अपोजिशन का मतलब होता है एक मीनिंग दूसरे के विपरीत होना, और वो बाइनरी अपोजिशन होता है अपनी एक डेफिनेट वर्च्यूज के कारण, फीचर्स के कारण। जैसे कि हमने यहाँ पर कह दिया, वर्ड दिया कि मेल, भाई हमने कह दिया मेल है ये, तो आदमियों ने देखा होगा कि भाई मेल के गुण अलग होंगे, वर्च्यूज अलग होंगे, फीमेल के अलग होंगे, तो उन्होंने आदमी जो होते हैं उनको कर दिया मेल। अब मेल वर्ड आ गया तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, मिलता जुलता उसी से है, कुछ ही फीचर्स अलग हैं, तो मेल का लोगों ने अपोजिट बना दिया फीमेल। तो ऐसे ही फीमेल का जन्म हो गया। जैसे किसी ने पहले डे बोला होगा तो डे के साथ में उन्होंने उसका अपोजिट ढूंढ लिया और कह दिया नाइट कह दिया, तो तब ये नाइट का जन्म हुआ होगा। तो ये जो है, अगर आप केवल अकेले समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। जब मेल को फीमेल से समझा जाएगा देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, तब समझेंगे। खाली मेल को समझ लेंगे तो समझे में नहीं आएगा ना कि मेल क्या है। जब आप समझेंगे कि जब फीमेल के साथ तुलना करें तब समझ में आएगा कि मेल ये होते हैं, फीमेल ये होती हैं, तब आपको वर्ड के बारे में समझ में आएगा। आइसोलेशन में करेंगे अकेले, अगर मीनिंग समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे बात समझे दूसरी, हम और आप स्टोरी बनाते हैं बहुत सारे, स्टोरी आधे बच्चे क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उन्हें हर बात का तो मीनिंग चाहिए, मीनिंग चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। अगर उस पार्टिकुलर शब्द को जो सेंटेंस कह रहा है उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे, उसमें कंट्रास्ट करके देखेंगे, तो वहां पर सेंस देगा, और सेंस के आधार पर वर्ड लगाएंगे तो आपका स्टोरी बन जाएगा। बात समझ में आई? आइसोलेशन में खाली मीनिंग मीनिंग चिल्लाएंगे तो कभी नहीं होगा। वही लिखा गया है। तो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स वर्ड्स आर डिफाइंड इन रिलेशनशिप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्ट विद वन अनदर, ठीक है। साइंस आर द स्ट्रक्चर विद द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रिलेशंस एंड ऑफ अपोजिट बाइनरी अपोजिशन। तो पता है भैया जी, साइंस जो है स्ट्रक्चर किए गए हैं मतलब बाइनरी अपोजिशन के रिलेशन के साथ, मैंने बता दिया आपको। द रिलेशंस आर चार्ज विद द डीप मीनिंग इन ह्यूमन कल्चर। अब ये जो रिलेशंस हैं ये पहले से ही ह्यूमन कल्चर में निहित हैं, पहले से ही बहुत सारे वर्ड ऐसे आए हैं जो हमारे पहले से ही चलते हुए चले आ रहे हैं। अ वर्ड पोजेसेस मीनिंग थ्रू इट्स डिफरेंस फ्रॉम अदर। अब आप समझना किसी भी शब्द ने अपना मीनिंग कब पाया होगा? जब ये दूसरे वर्ड से अलग होगा। जैसे यहाँ पर समझो, ये कैट लिखा है और ये हैट लिखा है, दो वर्ड क्यों बनाए गए होंगे? क्योंकि कैट का अपना वर्च्यू अलग है, इसकी फीचर्स अलग हैं, हैट की अपनी फीचर्स अलग हैं। फोनेटिक साउंड तो एक ही है, लेकिन एक पहला वर्ड दूसरे वर्ड से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कैट को उन्होंने सोचा कि मान लो इसके चार पैर होंगे, इसका कुछ है नहीं, तो इसका फॉर्म और इसके वर्च्यूज अलग हैं, इसके अलग हैं। जैसे टैप, ठीक है,
और कैप, तो दोनों एक दूसरे से अलग क्या है, जबकि फोनेटिक साउंड एक ही है, क्योंकि इनकी फीचर्स वर्चू अलग है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ना, अ वर्ड पोजेसेस मीनिंग थ्रू इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड। कोई भी मीनिंग वर्ड ने अपनी क्यों पाई, क्योंकि वो पहले दूसरे से अलग था। किसमें अलग था? इन द ऑर्गेनाइजेशनल चैन, जो चैन बनाई गई है उस चैन में वो फिट नहीं हो रहे थे, इसीलिए उनका मीनिंग अलग हो गया। ठीक है, तो सिंटैगमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब आपको समझ में आएगा क्या, जैसे यहाँ समझो, चल जाओ भाई। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो द वर्ड कैट मीन्स कैट ओनली बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स डिफरेंस फ्रॉम कैट। मैंने बताया ना, कैप और कैट अलग अलग है दोनों वर्च्यू में, इसलिए ऐसा हो गया। जैसे यहाँ पर समझो, होवेल, शेड, हट, हाउस, मेंशन, प्लेस, पैलेस, ये लगभग घर के बारे में ही बताते हैं। बात समझ रहे हैं? अभी ये सब के सब जो हैं एक ही चैन में यूज किए गए हैं ये सारे वर्ड। ठीक, अब आप देखना, ये सब हमारे घर के सिनोनिम्स हैं और एक चैन में अभी हैं ये, तो इनका मीनिंग अभी सिनोनिम में हम यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही इसको हम इस चैन से हटाएंगे इनका मतलब अलग हो जाएगा। बात समझ में नहीं? तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इनका एक कोई परमानेंट मीनिंग है? नहीं है ना। ये एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि इनके वर्चू भी अलग अलग हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखें, तो हार्ट एंड शेड जो है ये स्मॉल होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर नॉट द क्वाइट द सेम थिंग। हार्ट इज प्राइमरली फॉर शेल्टर, ठीक है, एंड शेड इज प्राइमरली फॉर स्टोरेज। दोनों अलग हैं, लेकिन हम इसको एक चैन में है तो एक जैसे यूज करेंगे। जैसे इनको अलग अलग कर देंगे इनका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये पेयर्ड या अपोजिट बाइनरी पोजीशन आपको बता दिया, जैसे मेल एंड फीमेल, ईच डिजिग्नेट द एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड इन द अदर। दोनों इसलिए एक दूसरे की बाइनरी पोजीशन की, इसकी और इसकी दोनों की अलग थी, इसलिए मैंने आपको बताया ये नाम जो है वहां पर आ जाते हैं। अब सिस्टमेटिक क्या है? लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट आवर वर्ल्ड एंड आवर वेरी एग्जिस्टेंस। तो आप जानते हैं, देखो बिना लैंग्वेज के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। लैंग्वेज जो है वही एक मीडियम है हमारे थॉट और इमोशंस को दूसरे तक एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, हाँ या ना। तो लैंग्वेज को समझना जरूरी है कि नहीं है? जब आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो आप जो स्पीच है वो कैसे आप अपनी बात को वहाँ पर कह पाएंगे, कैसे सिंटेक्स में जो है भाई अरेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारे वर्ल्ड को और हमारे एग्जिस्टेंस को। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये होल पे फोकस करता है, पार्ट पे नहीं। कि किसी, जैसे आपने कहा कि कैट है, जैसे आपने कहा हाउस, हाउस का मतलब क्या है, तो आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इसको एक सेंटेंस में आप नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको वर्ड को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वी therefore should not look at what people says but what makes the speech possible at all। लोग क्या कहते हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो स्पीच का मतलब कहाँ तक जा रहा है उस चीज को समझना ही स्ट्रक्चरलिज्म है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे हम आप कुछ कहते हैं, हमने कुछ कहा लेकिन आपने समझा क्या, वो मायने रखता है कि ये आदमी कितनी जो है गहरी बात कह के गया। वो आप जान गए तो समझ लो फिर स्ट्रक्चरलिज्म है कि भाई इसके बात कहने का क्या लेवल क्या था। तो स्ट्रक्चरलिज्म भी वही है, एक इसके ऊपर फोकस करता है, ये फोकस करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके कहने का मतलब जो हमारी लैंग्वेज है वो बेसिकली एक लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट है, उसका एक अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, चाहे वो ग्रामेटिकल पैटर्न हो, चाहे भाई फिगर ऑफ स्पीचेस हो, चाहे सिम्बल्स हो, इमेजरी हो। ठीक है, और लैंग्वेज जो पूरा एक सिस्टम ऑफ साइंस है, यानी कि उसमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड होता है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको समझ गए तो हम टेक्स्ट का रियल जो मीनिंग है उसको हम समझ जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंट, और टेक्स्ट का ऐसा नहीं कि किसी की जो है मोनोपोली हो। जो उस सिग्निफाइड को समझ जाएगा, जो एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, और उसको समझ जाएगा तो वो चीज़ें आराम से उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का मीनिंग को इन्फरेंस कर पाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पर और भी समझनी है कि देखिए कोई भी वर्ड आज जो बना हुआ है ये पुराने कन्वेंशंस पर, ठीक है, चलता चला आ रहा है। इसका जो यूज़ हुआ है या जो कन्वेंशंस है उसी के आधार पर आज वर्ड जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर वर्ड का कोई अपना खुद का मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग बदल भी सकता है। अगर ये एक इसी कन्वेंशंस में आज से ही कुत्ते को बिल्ली कहा जाने लगे तो बिल्ली हो जाएगा वो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मीनिंग जो होती है बेसिकली वो आर्बिट्रेरी होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज़ होकर के ही उसका हम मतलब रियल जान पाएंगे, क्योंकि उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग किसी पर्टिकुलर वर्ड का नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमको होल पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पार्ट पर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ जो मीनिंग मतलब मेन चीज़ें थी जिसके ऊपर स्ट्रक्चरलिज्म ने फोकस किया। तो जैसे मैंने आपको बताई ना दिया, मेन चीज़
आर्बिटेरिनस, रेशनल, ठीक है, सिस्टेमेटिक और बाइनरी अपोजिशन और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया। इन्होंने बताया लैंग्वेज जो सिस्टम है वो साइन का, लैंग्वेज एंड पैरोल की उन्होंने बात की कि भाई किसी भी जो है चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हमको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, फिर स्पीच की ज़रूरत होती है, वो चीज़ पे बात की उन्होंने। तो ये कुछ खास चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।